سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر اور بھلائی کی نیت سے کیا گیا ہر عمل، چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ خیر اور بھلائی کی نیت سے کیا گیا ہر عمل، چھوٹا یا بڑا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آپ چاہے کوئی صدقہ دیں، قبول ہے، خیرات دیں، قبول ہے، زکوٰۃ دیں، قبول ہے، اپنے والدین پر خرچ کریں، قبول ہے، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کریں، قبول ہے، کسی کمزور غریب بہن بھائی رشتہ دار پر خرچ کریں، قبول ہے، آپ عبادت کریں، قبول ہے، آپ درود پاک پڑھیں، قبول ہے، ذکر اذکار کریں، قبول ہے، حج عمرے کریں، قبول ہے، سب قبول ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کیا گیا عمل اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں فرماتے، قبول فرماتے ہیں۔ پھر اس پر آپ کو نیکی، ثواب، اجر، کامیابی، درجات، دنیا و آخرت کی خوشحالی، خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ کیا آج کسی ایسے عمل کا ذکر کیا جائے جو ان تمام چیزوں پر فوقیت لے جائے، افضل ہو جائے؟ یقیناً آپ سننا چاہیں گے، یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سا عمل ہے جو تمام عبادات سے بھی آگے، تمام صدقات، خیرات، زکوٰۃ، نیکی، بھلائی، خیر والے کاموں سے بھی آگے۔ اچھا، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی کہ بھی ہاں بھی وہ عمل آگے نکل گیا، نہیں، اگر آپ اس عمل کے حامل ہیں اور آپ نے تھوڑی سی عبادت کی ہے تو وہ عرفہ و اعلیٰ کر کے قبول کی جائے گی۔ آپ نے تھوڑا سا صدقہ یا خیرات کیا ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، وہ بڑا کر کے، بہت کثیر کر کے قبول کیا جائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ وہ ایسا کون سا عمل ہے؟ سن لیجئے، وہ عمل ہے اپنے آپ کو سنوارنے اور نکھارنے کا، اپنے آپ کو سنوارنے اور نکھارنے کا۔ یاد رکھیے گا، عبادات کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتے بہت ہیں، بہت ہیں۔ پوری دنیا میں انسان، جنات، چرند پرند، نباتات، حشرات، ہر چیز اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ بھی عبادت میں لگ جائیں گے تو کون سا آپ نے مارکا مار لیا؟ اچھا، یہاں پہ میری بات کو نیگیٹو نہیں لینا پلیز۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عبادت کرنا چھوڑ دیں معاذ اللہ، کیونکہ آپ کی عبادت کسی کھاتے میں کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ نہ، استغفر اللہ العظیم، یہ میرا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بھائی، آپ عبادت کرو، صدقات خیرات کرو، خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لو، حج عمرے بالکل کرو، روزے ضرور رکھو، لیکن ان سب کے ثمرات کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملینز آف ٹائم ملٹیپلائی کر دیا جائے تو خدارا سب سے پہلے اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو
अपने उसने अमल को संवार लें, संवारें, पहले प्रैक्टिस करें उसकी। याद रखिएगा, अगर मेरा हुस्न इखलाक अच्छा नहीं है, मैं सिलाए रहमी नहीं करता, मेरे कोलो फेल में तजाद है, मैं झूठ भी रगड़ जाता हूं, गीबत भी करनी हो पीछे नहीं रहता, लेकिन साथ में नमाज नहीं छोड़ता, मैं हर साल उम्रे पे भी जाता हूं, मैं ज़कात भी देता हूं, तो यकीन जानिए ये सारी नेकियां, भलाइयां, इबादतें कहीं ना कहीं वो नुकसान की तरफ जाती रहती हैं, ज़ाया होती रहती हैं। ये सुना होगा, आप सब जानते हैं माशाल्लाह। भाई मैंने किसी की गीबत की तो क्या होगा? उसके गुनाह मुझे मिल जाएंगे, मेरी नेकियां उसके पास चली जाएंगी, उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे, मेरे दर्जात नीचे आ जाएंगे। और गीबत के मुतल्लिक है, ऐसे है जैसे सगे भाई का मुर्दा पड़ा हो और आप उसमें से गोश्त उसका नोच नोच के खा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अलअज़ीम। अब आप मुझे ये बताएं, आपने सारी जिंदगी इबादतें की, वो इबादतें किधर जाएंगी अगर आपने गीबत ना छोड़ी तो? वो इबादतें किधर जाएंगी अगर आपने झूठ बोलना नहीं छोड़ा तो? वो इबादतें किधर जाएंगी अगर आपका हुस्ने इखलाक अच्छा नहीं है तो? मैं बात सिर्फ इबादतों की नहीं कर रहा, सदकात, खैरात, ज़कात भी ले आए। भाई मैं बहुत मालदार आदमी हूं, मैं अल्लाह की राह में बेइंतहा खर्च करता हूं, किधर जाएगा अगर मेरे अंदर तकब्बर भरा हुआ है तो? अगर मेरे अंदर पावर का खुमार है तो, हवा हिरस है और पैसा इकट्ठे करने की, वो मेरी इबादत किधर जाएगी? वो मेरे रोजे किधर जाएंगे? वो मेरी ज़कात किधर जाएगी? फायदा देगी? मैं ये नहीं कहता खुदा न खास्ता नुकसान देगी, लेकिन कम फायदा होगा। अगर यही आप काम एक पकड़ लें कि अपने आप को संवारना है, अपने आप को निखारना है, मैंने अपने किरदार की, अपनी पर्सनैलिटी की इंप्रूवमेंट करनी है, मेरी जुबान से, मेरे हाथ से हर मुसलमान बहन और भाई मेरी निगाह से भी महफूज रहें, मुझे ये काम अपनाना है। याद रखिएगा, इस दौर में इल्म वाले लोग बहुत हैं, इंफॉर्मेशन भी बहुत है, इंटरनेट पे भरा हुआ है। अल्लाह अकबर, आप एक क्वेश्चन करें, 20 जवाब आ जाते हैं। बहुत है इल्म, बहुत है नॉलेज, बहुत इंफॉर्मेशन है। अमल वाले लोग कम हैं, और उन अमल वालों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें भी हुस्ने इखलाक वाले लोग और भी कम होंगे। मैंने अपने वर्कर को, अपने मजदूर को कभी इज्जत नहीं दी, हमेशा उसकी उसकी क्या कहते हैं, इज्जत नफ्स को मजरू करता रहता हूं, उसे जलील और ख्वार करता रहता हूं, उसे तंग करता रहता हूं, उजरत भी पूरी नहीं देता। अगर कोई फेवर मांग ले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उम्र में साल में 2-2 बार करूं, हर साल हज करूं, तो बताएं वो मेरी इबादत किधर जाएगी? लिहाजा सबसे बड़ी तालीमात ये हैं कि अपने आप को संवारें, अपना किरदार ठीक करें, अपनी गुफ्तार ठीक करें, अपनी निगाह ठीक करें, अपना कौल और फेल ठीक करें, अपने आप को संवारें। खुदारा ये इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल है, ये सारी जिंदगी आपको इसमें लगेगी। ये वो अमल नहीं है कि अच्छा भी मैंने दिन में 5 बार
नमाज पढ़ ली एंड दैट्स इट, मैं फारग हो गया। नहीं, ये 24 आवर का अमल है जो बता रहा हूं। लिहाजा अपने आप को संवारना है, अपने नफ्स से हमेशा जंग छेड़े रखना है, लड़ाई करते रहना है, हर बुरी बात पर उसे टोकना है। हर झूठ जब मुझे मुंह से निकलने लगे उसे रोकना है, नहीं भी नहीं, झूठ नहीं बोलना। गीबत मुंह से निकलने लगे फौरन रोके उसे। जो बंदा पास बैठा कर रहा है गीबत, उसको भी रोके कि ना भाई ना, वो बंदा इधर मौजूद नहीं है, तू अपने भी अमाल जाया करेगा, मेरे भी करेगा। भाई कोई और बात कर, वो अपनी कोई बात कर, कोई मेरी बात कर। हमने उसकी बुराई, उसकी गीबत नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, हराम नहीं खाना, अपनी जुबान से आलाप शराब नहीं बकना। आई एम सॉरी अबाउट माई लैंग्वेज, लेकिन नहीं कोई ऐसी बातें मुंह से निकालनी जिससे कोई शर फैले, कोई फितना फैले, जिससे किसी की दिल आजारी हो, जिससे किसी को डिग्रेड किया जा रहा हो। हमें वो बातें नहीं करनी। हमें अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे करना है। कैसे ताबे करना है? जिस काम से अल्लाह पाक ने मना फरमाया, अल्लाह के प्यारे नबी ने मना फरमाया, उससे बाज आ जाएं। जिस काम के करने को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि करो, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करो, तो उसको करने लग जाओ। अपने आप को संवारे। अच्छा, फिर होगा क्या? फिर आप थोड़ी सी इबादत भी करेंगे, ज्यादा मकबूल होगी, नाफे होगी। आप थोड़ा सा दुरूद पाक भी पढ़ेंगे, वो ज्यादा होगा, नाफे होगा। थोड़ा सा सदका खैरात करेंगे, वो नाफे होगा, क्योंकि आपने अपने आप को संवारा होगा। आपके अमल अमले सालिहा होंगे, आपका ईमान सादकीन जैसा होगा, सच्चे लोगों जैसा। अपने आप को संवारें। लोग इल्म की बातें तो बहुत सुनाते हैं, और अमल वाले भी बहुत हैं, इबादत करने वाले भी, आबिद और जाहिद भी बहुत हैं, बहुत ही बातें करने वाले लोग हैं। और भाई अपने आप को संवारने में कामयाबी यकीनी है, यकीनी है। अगर इबादत पर मान करने लग जाए तो इबादत तो फिर इब्लीस ने भी बड़ी की थी। बड़ा जाहिद व आबिद था वो। नहीं, अपने आप को हम्बल करें, डाउन टू अर्थ, आजिज़ी करें। अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने बीवी बच्चों से, अपने मुलाजमीन से, इवन अपने दुश्मनों से। आपके पास ताकत हो, मौका हो कि आप उससे बदला ले सकें, आपके पास ताकत हो, मौका हो कि आप उसको अजियतनाक सजा दे सकें, लेकिन फिर भी आप उसे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें, ये बहुत बड़ा अमल है, ये बहुत बड़ा अमल है। लिहाजा अपने आप को संवारना, इस पर जोर ज्यादा दें, इसकी प्रैक्टिस करें। ये जितने भी औलिया इकराम, पीराने कबार, जितने भी आला लोग हुए हैं, ये हमेशा अपनी शख्सियत को निखारने पर जोर लगाते रहे, अपने आप को संवारने पर जोर लगाते रहे। भाई मैंने जाहिरी तौर पर तो वजू बना लिया, गुस्ल कर लिया, जिस्म पाक हो गया, साफ हो गया, पर मेरे अंदर की कदूरतें, मेरे अंदर की गंदगियां किधर जाएंगी? मैं कैसे एक सच्चा इंसान बन सकता हूं अगर मैं झूठ नहीं छोड़ूंगा, गीबत नहीं छोड़ूंगा, लोगों का जायज नाजायज माल खाना छोड़ दूं? कैसे? अच्छा, भी मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं, मुझसे पढ़ी नहीं जाती, मुझ पर बड़ी भारी, बड़ी गिरां गुजरती है, बड़ा मुश्किल लगता है मुझे नमाज पढ़ना। भाई मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं, पर बड़ा मुश्किल है, भाई मुझे कुरान पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है।
मैं और भी जिक्र अज़कार करना चाहता हूँ। ये घंटा, डेढ़ घंटा, सवा घंटा मैं बैठ के अल्लाह अल्लाह करता हूँ ऑनलाइन, मुझे ये भी बाज़ औक़ात बड़ा कुफ़्त देता है। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ कि मेरे अमल जो हैं वो अमले सालिहा बन जाएँ? मैं क्या करूँ कि मेरे अंदर से झूठ निकल जाए? मैं क्या करूँ कि मेरे अंदर से मक्र फ़रेब निकल जाए, हवा हिरस निकल जाए, उजब तकब्बुर निकल जाए, गुस्सा गज़ब निकल जाए, सोच की निगाह की गंदगी मेरे अंदर से निकल जाए? क्या करूँ? कौन सा ऐसा अमल करूँ? हाँ, ये सही क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा अमल करूं? भाई मैं तो कुश्ती करता रहता हूं, लड़ता रहता हूं अपने नफ्स से, लेकिन मैं हर बार ही हार जाता हूं, मैं हर बार ही नाकाम हो जाता हूं। शैतान से और नफ्स से लड़ते लड़ते मैं सैकड़ों बार हार गया, थक गया, क्या कहते हैं, नॉकआउट हो गया। क्या ऐसा अमल करूं कि मुझे कोई एड मिले, मुझे कोई सपोर्ट मिले, मुझे कोई अल्लाह की बारगाह से मदद पहुंचे कि मैं नफ्स का मुकाबला कर सकूं, मैं शैतान का मुकाबला कर सकूं, मैं अपने अंदर का जो ज़मीर है उसको सवार सकूं। मैं अपने ज़ाहिर को तो मैंने गुस्ल करके, वज़ू करके, तहारत करके, इस्तिंजा करके धो लिया, पाक कर लिया, लेकिन कौन सा ऐसा अमल करूं जिससे अंदर मेरे की गंदगी, मेरे अंदर की कुदूरतें, मेरे अंदर की गफलतें निकल जाएं? वो अमल है अल्लाह का जिक्र। मैं फिर रिपीट करता हूं, अल्लाह का जिक्र। और अल्लाह का जिक्र क्या है? अल्लाह को पुकारना। अल्लाह, 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 ये उसको पुकारना, उसका नाम पुकारना, उसको बुलाना, उसकी तरफ रुजू करना, उसके लिए जुस्तजू करना, उसी का जिक्र करते रहना। ये वो वाहिद अमल है जिससे आपको मदद पहुंचेगी। जब आप अच्छे अमलों की लिस्ट बनाएंगे ना, तो ये उनमें सबसे टॉप पे आएगा। दुआओं से भी मदद पहुंचती है, इबादतों से भी मदद पहुंचती है, सदकात खैरात से भी पहुंचती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अल्लाह का जिक्र सबसे अफजल है। मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब मैं कसरत जिक्र करने लग जाऊंगा, मेरे अंदर से जो गफलत है वो दूर होगी और जो रोशनी है वो अंदर आएगी। मेरे अंदर से कुदूरतें जो है वो निकल जाएंगी और राहतें, इत्मीनान, अल्लाह की मोहब्बत और कुर्ब इसमें दाखिल होगा। जब गफलत छट गई, कुदूरतें छट गईं, तो नमाज पढ़ना आसान हो जाता है। फिर नमाज अच्छी लगने लग जाती, फिर दिल करता है, फिर दिल ये करता है मैं 5 नमाजें क्या, अब नमाजें 7 कर दूं, इसके साथ मैं अशराक की और तहज्जुद की भी शामिल कर लूं। फिर उससे भी तसल्ली नहीं होती, फिर बंदा कहता है अच्छा मैं कुछ इजाफी नफल नफल अवाबीन में शुरू कर लूं को मगरिब के बाद, और कुछ नहीं तो रात के पिछले पहर में कोई 150 नफल और पढ़ लिया करूं। हाय भाई, मोहब्बत का आलम तो ये है कि महबूब आंखों से हटे ही नहीं, बस उसी को तकता रहूं। तो जब आप अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाएं, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाएं, अल्लाह की इबादत में लग जाएं, तो क्या दिल करेगा कि ये छोड़ के तो मैं किसी और काम में चला जाऊं, जाके और कुछ नहीं तो सो ही जाऊं? दिल तो करेगा कि नहीं, बस हम अल्लाह की याद में बैठा रहूं, बस अल्लाह अल्लाह करता रहूं। किसी सूफी बुजुर्ग आशिक ने बहुत खूब कहा, उसने कहा अल्लाह मैं चाहता हूं एक तू हो और एक मैं हूं, बस और कोई ना हो, तखलिया हो, अकेले हो। अल्लाह एक तू हो और एक मैं हूं, बस और कोई ना हो, बस सिर्फ तू हो और मैं हूं, और कोई ना हो। और तू और मैं में से ये मैं निकल जाए और सिर्फ तू ही तू हो। हाय, सिर्फ तू ही तू हो। अल्लाह से मोहब्बत करें,
اور اللہ سے محبت کا بہترین طریقہ ذکر الہی ہے، اس کا نام پکارتے رہیں، اس کی یاد میں مشغول ہو جائیں، اس کے ذکر میں جت جائیں، لگ جائیں، کوئی لمحہ غفلت کا نہ ہو۔ آپ کام کریں، کاروبار کریں، نوکریاں کریں، گھر میں باہر کہیں بھی کھائیں پیئیں، مصروف رہیں، سب کچھ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ رہبانیت اختیار کر لیں، نہیں، لیکن ہر وقت آپ کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ اللہ اللہ اللہ، دل کی تصوری زبان سے اللہ اللہ کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، پکارتے رہیں۔ آپ سو بھی رہے ہوں گے نا تو آپ کا دل ذکر میں مشغول ہوگا، یہ ذکر جاری ہوگا۔ زبان اور دل اللہ کے ذکر میں تر رکھیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ قدورتیں نکل جائیں گی، پھر یہ جھوٹ نکل جائے گا آپ کے اندر سے، پھر یہ غیبتیں ختم ہو جائیں گی، پھر غفلتیں ختم ہو جائیں گی، یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے، زبان بھی، نگاہ بھی، کان بھی، حواس خمسہ پاک ہو جائیں گے۔ جب حواس خمسہ پاک ہوں گے تو لطائف خمسہ خود بخود پاکی کی طرف چلے جائیں گے۔ اپنی شخصیت کو نکھاریں، اپنے کردار کو نکھاریں، پھر جو تھوڑی سی بھی آپ عبادت کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ فائدہ دے گی۔ کمائی تھوڑی سی بھی ہو لیکن گھر آئے، یہ نہ ہو کہ رستے میں گر جائے۔ کمائی تھوڑی سی بھی ہو، آپ کے استعمال میں ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی چور لے جائے۔ کمائی تھوڑی سی بھی ہو لیکن آپ کے لیے نافع ہو، علم تھوڑا سا بھی ہو لیکن نافع ہو، عمل والا ہو، برکت والا ہو، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ آج کی تعلیمات، اپنے آپ کو نکھارنا، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے اخیار کو خیر اور بھلائی کی بات بتانا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا میں تھوڑا سختی کر کے نا ان کو ٹھیک کر دوں گا سب کو۔ ایسا نہیں کرنا، کوئی ڈنڈا نہیں ہاتھ میں پکڑ لینا کہ اچھا بھی اب میں ساری دنیا ہی ٹھیک کرنے چلا جاؤں گا، نہیں۔ دین کا حسن دکھائیں کہ لوگوں کو دین سے محبت ہو جائے۔ بری چیزیں بری لگنے لگ جائیں، جب آپ ذکر کریں گے نا تو انشاءاللہ ایک یہ بھی فائدہ حاصل ہوگا آپ کو کہ جو بری چیزیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں، وہی چیزیں آپ کو بھی ناپسند ہونی شروع ہو جائیں گی۔ نفرت ہونی شروع ہو جائے گی برائیوں سے، گندگیوں سے، غلاظتوں سے، نفرت۔ دل اچاٹ ہو جائے گا، ہٹ جائے گا ادھر سے، بالکل ادھر جائے گا بھی نہیں۔ جھوٹ آپ بولنے لگیں گے، آپ چاہیں گے کہ اچھا میں ڈیلیور کر دوں، ادھر ہی رک جائے گا، زبان سے بھی نہیں دے گی کہ یہ جھوٹ نکلے اس میں سے۔ اپنے کرداروں کو نکھاریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ دنیا کی محبتوں سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے اندر غیر اللہ کی محبتیں بس رہی ہوتی ہیں، جنہوں نے پیسے کو، دولت کو، شہرت کو، طاقت کو الہ سمجھ لیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے مقرب بندے نہیں ہوتے، نہ ہو سکتے ہیں۔ چلیں آج آپ کو ایک قرآن پاک سے بھی ایک آیت مبارکہ بتاتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے گا، اس کی تفسیر بھی پڑھیے گا۔ سورہ کاف آیت نمبر 28، آیت نمبر 28، کہ ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرنا جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور جو لوگ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، جب ان کی صحبت میں بیٹھو تو ان کے چہروں سے اپنی نظریں نہ ہٹاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے خاص بتار ہو۔ مفہوم یہ بتا رہا ہوں، ترجمہ آپ خود پڑھیے گا، تفسیر آپ خود پڑھیے گا۔ چلے بھی ہمارے دوسرے جو مکاتب فکر ہیں انہوں نے بعض اوقات ترجمے کو تھوڑا ٹوسٹ کیا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، دو تین مختلف جو
उलमा हजरात हुए हैं उनके तर्जुमे पढ़ लीजिएगा, 2-3 मुख्तलिफ पढ़िएगा, आपको अंदर की बात खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि किस में फ़ायदा है। या रब्बुल आलमीन, या रब्ब ज़ुल जलाल, या मालिकुल कुद्दूस, अल्लाह तेरे नाम मुबारक का जिक्र किया है, मालिक हक अदा नहीं किया, थोड़ी सी कोशिश की है, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने भी साथी सामीन और नाजरीन जो लाइव हमारे साथ बैठे जिक्र कर रहे हैं या जो बाद में महफल की रिकॉर्डिंग के साथ जिक्र में भी शामिल होंगे, दुआ में भी शामिल होंगे, अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमा। हम सब को दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। ज़मीन व आसमान में मौजूद हर चीज़ के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा, अपना फ़क्र अता फरमा, अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। सब कुछ दिया है तूने, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तकामत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। जब वक्त मौत आए तो अल्लाह कलमे और ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। अल्लाह हमारी गलतियां खताएं माफ़ फरमा दे, हमारी कोताहियां सुस्तियां बेअदबियां माफ़ फरमा दे, हमारी लग़्ज़िशें माफ़ फरमा दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह कोई आड़े टेढ़े बोल मुंह से निकल गए हों, अल्लाह माफ़ी चाहते हैं, रजू करते हैं, हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह तेरी और तेरे महबूब की शान को बयान करते हुए कोई बात नाजेबा मुंह से निकल गई हो, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं, अपना करम अता फरमा दे। तेरी ज़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराते, अल्लाह हम पर रहम फरमा दे। हमारे आबा व अजदाद के, हमारी औलादों नस्लों के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। कुल उम्मत मुसलमा की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुसलमान मुल्कों इलाकों सरहदों की खैर फरमा, मुसलमानों की इज्जतों शर्मों की इमला की खैर फरमा, मुसलमानों की औलादों नस्लों की या अल्लाह खैर फरमा दे। अव्वल खैर, आखिर खैर, जाहिर खैर, बातिन खैर, माली खैर ही खैर कर दे। अल्लाह अपना करम अता फरमा, हमें अपने किरदारों को निखारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अपने आप को संवारने की हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, अल्लाह हमें हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमा। वसाइल असबाब और या अल्लाह नेक इंतज़ाम अता फरमा। ऐसे बासफ़ा लोग मिला दे जो हमारे लिए आइडियल हों, जिसकी सोबत व संगत में बैठकर हम भी अपने आप को संवार सकें, ऐसा करम अता फरमा। या अल्लाह ऐसे मशाइख, साथिज़ा, वालिदैन जो हमें गाइडेंस देते हैं, मालिक उन सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। जिन्होंने भी आज तक हमसे मोहब्बत की, हम पर शफकत की, हमारे साथ सिलाए रहमी बरता, अल्लाह सब के दर्जात आला तरीन फरमा। या अल्लाह हमें दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमा, हमारी किरदार और गुफ्तार को अच्छा फरमा दे। अल्लाह हमारी निगाह को अच्छा फरमा दे, हमारी सोचों को अच्छा फरमा दे, अल्लाह हमारे अमलों को अच्छा फरमा दे। अल्लाह हम एक अच्छे इंसान बनकर जीना चाहते हैं, हमें मदद अता फरमा, हमें हमारी इस्लाह फरमा दे, हमारी रहनुमाई फरमा दे। अल्लाह हम पर करम अता फरमा, मुझ पर भी, मेरे साथियों पर भी, हम सब पर अपना करम अता फरमा। हमारे घरों में खुशहाली अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा दे, जो मुश्किलों में, मुसीबतों, बलाओं में घिरे हुए हैं, अल्लाह उनको अपने करम से आसरा अता फरमा दे। अल्लाह उनकी मुसीबतें, बलाएं दूर कर दे। या अल्लाह हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, जिक्र व फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, कुरान को सही तरीके से पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रमज़ान का मुबारक महीना आया, अल्लाह रमज़ान के रोज़े रखने, उनको अहसन तरीके से, एहतमाम से रखने और निभाने की तौफीक अता फरमा। इस मुबारक महीने में जो एक मुबारक रात छुपी हुई है, अल्लाह उसको पा लेने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उसको ढूंढना हमारे लिए आसान कर दे, उसकी फीज़ो बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमा।
अल्लाह हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमारे सदकात, खैरात, ज़कात, जो भी खैर और भलाई के नेक अमल कर रहे हैं, छोटे या बड़े, सब अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। अल्लाह इस मुबारक महीने का वास्ता है, अल्लाह पूरी दुनिया पर अपना करम अता फरमा दे, बिलखसूस उम्मत मुसलमा और बिलअमूम पूरी दुनिया की इंसानियत पर अपना करम अता फरमा दे। या अल्लाह रहम वाला मामला फरमा। ये जो अनारगी फैली हुई है, ये जो खौफ व हिरास, ये जो वहशत फैली हुई है, अल्लाह अपने करम से ठंडी कर दे, रहम फरमा दे। जो लोग तेरे और तेरे महबूब के दर की बादब हाजिरी के लिए आए हैं, अल्लाह उनकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। ये मुबारक सफ़र हर मुसलमान मर्द, औरत, बच्चे, जवान, बूढ़े, हर एक के नसीब में कर दे। या अल्लाह जो आस उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए वसाइल असबाब अता फरमा दे। अल्लाह अपना करम अता फरमा। जो भी दुआएं मेरे तमाम साथियों के दिलों में हैं, तमाम नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक ज़रूरतें अपने ख़जाना गैब से पूरी फरमा दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा दे। खुसूसन बिलखसूस उमर बाबा की वालदा के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह हमारी बहन को ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमा, शिफाए कुल्ली सेहत कामिला आजला अता फरमा। जितने भी सामाईन और नाजरीन हैं, इनके बुजुर्गों में, वालिदैन में, बहन भाइयों में, बीवी बच्चों में जो कोई बीमार है, अल्लाह सबको शिफाएं अता फरमा। जो ज़ाहरी, बातनी, जिस्मानी, रूहानी किसी किस्म की भी बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह इस मुबारक महीने की बरकत से शफाएं अता फरमा दे। या अल्लाह तमाम बीमारियों को शफाओं में बदल दे। तुझे तेरे महबूब का वास्ता है, अल्लाह हम सबको शिफा अता फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप सबको रमज़ान भी मुबारक हो, आज की महफिल भी मुबारक हो, और जो तालीमात आज दी गई हैं, शायद कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इस बात को आप तक नहीं पहुंचा सका, लेकिन खुदारा अपने आप को संवारिएगा ज़रूर, कोशिश ज़रूर कीजिएगा, मेहनत ज़रूर कीजिएगा। ये शैतान और नफ्स ये हारते नहीं हैं, ये मरते भी नहीं हैं, लिहाजा हमें इनसे बस बचते बचाते अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में गुजारनी है। इसके लिए कोशां रहें, इसके लिए मेहनत करते रहें, इसके लिए जुस्तजू रजू करते रहें अल्लाह की बारगाह में। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने करम से आपकी मदद फरमाएगा और आप एक अच्छे इंसान हैं इसलिए महफिल में आए बैठे हैं, और इम्प्रूव हो जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे। फिर ये खैर और भलाई इतनी झोलियां भर के मिल जाती है, फिर आगे जो आपके पास बैठ जाया करेगा मोहब्बत से, वो भी मुस्तफीद हुआ करेगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।